لاہور کی تاریخ میں پہلی بار جیپ ریلی کا انعقاد ہو رہا ہے اور جیپ ریلی آج راوی کنارے منعقد ہوگی۔ جیپ ریلی سی بی ڈی اور روڈا کی معاونت سے ہو رہی ہے۔ اس وقت کیا صورتحال ہے جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مبین حیدر سے۔ جی مبین۔ بالکل یہ تازہ ترین صورتحال کے بتاتے چلے اس وقت ہم لوگ راوی کے احاطے کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر لاہور کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ہے جیپ ریلی کا آغاز کیا گیا ہے۔ کہ جیپ ریلی کی ڈیٹیلز بتاتا چلوں تو اس کے اندر جو ہے روڈا اور ٹی ڈی سی پی کی جانب سے جو ہے ان کے اشتراک سے یہاں پر جیپ ریلی کا انعقاد کیا ہے، جس کے اندر ڈرٹ بائکس 4x4 جیپس اور ٹرک ریلی جو ہے وہ یہاں پر اس کا انعقاد کیا گیا، جس سے کہ ہم سٹارٹنگ پوائنٹ پہ کہہ کے اپنے کیمرمین زہیب خان آپ کو دکھائے تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جہاں سے جو ریلی کا آغاز کیا جائے گا اور تقریباً 30 سے زائد کلومیٹر پہ محیط یہ ٹریک ہے، جس کے اوپر 60 سے زائد پارٹیسپینٹس جو حصہ لے رہے ہیں۔ ایک ڈرٹ بائک کے پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں سر بتائیے کہ ریلی کا آغاز ہونے جا رہا ہے، پارٹیسپینٹس کا سلسلہ جاری ہے، آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں، کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ السلام علیکم جی میرا نام عدنان ہے اور میرا تعلق ہے ضلع بہاولپور کے ساتھ ایک چھوٹا سا سٹی ہے سما سٹا وہاں سے، اور فرسٹ ٹائم یہ ایونٹ ہو رہا ہے اور فرسٹ ٹائم ہی ہم ادھر پارٹیسپیٹ کرنے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے ریس کھیلی ہے وہ کراچی ہب ریلی تھی، تو وہاں پہ میری سیکنڈ پوزیشن تھی۔ تو اس کے بعد جی یہ ٹریک تو بہت زیادہ چیلنجز والا ہے، اور اس میں جو ریت ہے، جو رٹس ہیں وہ بہت جو ہے نا ڈینجرس قسم کی ہیں، اور دیکھتے ہیں جی کیا بنتا ہے۔ آج ہر بندہ اپنی بیسٹ دینے کی کوشش کرتا ہے، ادھر بھی انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کریں گے، باقی اللہ پاک کے حوالے۔ بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا کہ پارٹیسپینٹس اپنا بیسٹ دینے کے لیے پرجوش ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پارٹیسپینٹس کیونکہ آمد کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پر جیپوں کی بھی آمد کا سلسلہ جاری ہے، ڈرٹ بائکس بھی آ رہی ہیں، گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، اور جو شوقین حضرات ان کے لیے بھی الگ سے کیمپس لگا دی کہ پراپر یہاں پہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ریلی آغاز ہوگا اس کے بعد پراپر ایک ریلی کا سلسلہ جاری ہو جائے گا، اس کے بعد شام 5 بجے جو ہے یہ ریلی اختتام پذیر ہوگی۔ تب تک کیا صورتحال ہوگی وقتاً فوقتاً آپ کو ہم اس سے آگاہی رکھیں گے۔ جی وزیر اعظم شہباز شریف کا گندم کی خریداری پر کسانوں کو درپیش مشکلات کا نوٹس۔ وزیر اعظم نے کسانوں کو باردانے کے حصول میں مشکلات پر اجلاس کی صدارت کی۔ کسانوں کو ان کی معاوضہ بروقت پہنچائیں گے، کسانوں کی محنت کو کسی کی غفلت کی بھیٹ نہیں چڑھنے دیں گے۔ افسران گندم کی خریداری کی موقع پر جا کر خود نگرانی کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں گندم کی خریداری کے حوالے سے پیش رفت اور کسانوں کو باردانہ کے حصول میں مشکلات پر اعلیٰ سطح کے ہنگامی اجلاس کی صدارت کی۔ باردانے کے حصول میں کسانوں کو درپیش مشکلات کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کسانوں کو ان کی محنت کا معاوضہ بروقت پہنچائیں گے، کسانوں کے معاشی تحفظ پر کسی قسم کا سمجھوتہ قبول نہیں۔ افسران گندم کی خریداری کی موقع پر جا کر خود نگرانی کریں۔ کسانوں کے فائدے کے لیے وفاقی حکومت پاسکو کے تحت 1.8 ملین میٹرک ٹن گندم کی خریداری کرنے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کسانوں کی سہولت اور ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے وزارت قومی غذائی تحفظ کی کمیٹی قائم کر دی، جو 4 روز میں کسانوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ بیرون ملک سے گندم منگوانے کے لیے ملک بھر کی 65 کمپنیوں نے حصہ لیا۔ نگراں دور میں درآمد کی گئی گندم روس، یوکرین اور رومانیہ سے منگوائی گئی۔ گندم بحران کے ذمہ دار امپورٹرز کون کون سے، لاہور نیوز نے فہرست حاصل کر لی اور تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں۔ نگران دور میں درآمد کی گئی گندم روس، یوکرین، بلغاریہ اور رومانیہ سے منگوائی گئی۔ مجموعی طور پر 36,12,827 میٹرک ٹن گندم پاکستان منگوائی گئی۔ 12 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد ضرورت نہ ہونے کے باوجود گندم درآمد ہوئی۔ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی اجازت پر ECC نے گندم منگوانے کی منظوری دی۔ اضافی گندم امپورٹ کی مانیٹرنگ نہ کرنے پر سیکرٹری نیشنل فوڈ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ گندم امپورٹ کرنے والی 65 کمپنیوں کی فہرست لاہور نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ لوئس ڈریفٹ کمپنی پاکستان لمیٹڈ نے 8,49,448 میٹرک ٹن اور یونائٹڈ ریسورسز کارپوریشن نے 5,20,442 میٹرک ٹن گندم منگوائی۔ یونائٹڈ ایگرو کیمیکل نے 1,91,689 میٹرک ٹن، MS سندھ فیڈ اینڈ الائڈ پروڈکٹس نے 1,34,404، یونائٹڈ ایگرو فٹ نے 1,21,600 میٹرک ٹن، DD شپ بریکرز کمپنی نے 1,14,000 میٹرک ٹن گندم امپورٹ کی۔ وولکا فوڈ انٹرنیشنل لمیٹڈ نے 97,349 میٹرک ٹن، MS تھارا انٹرنیشنل نے 97,030، حنیف اینڈ کمپنی 93,580 اور کلاسک فلور ملز نے 71,875 میٹرک ٹن گندم ملک میں منگوائی۔ الحمزہ ٹریڈنگ کمپنی نے 66,825 میٹرک ٹن، جبکہ غریب سنز پرائیویٹ لمیٹڈ نے 66,825 میٹرک ٹن گندم درآمد کی۔ امپورٹ کی گئی گندم سے پنجاب کا کسان رل گیا۔ پنجاب میں گندم کی نئی فصل امپورٹڈ گندم کی وجہ سے تاحال نہ خریدی جا سکی۔ وزیر خوراک بلال یاسین کا کہنا ہے کہ گندم درآمد کرنے کی تحقیقات جاری ہیں، کسان کا چھینا ہوا نوالا ہر صورت واپس لیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔
गंदम का मसला खासा संजीदा है। वज़ीर आज़म इस अहम इशू पर पीर के रोज़ खसूसी मीटिंग में अहम फैसले लेंगे। स्मीडा के ज़ेर तमाम प्री बजट इजलास में राना तनवीर ने कहा कि साबिक हुकूमत ने गंदम की दरामद की, जिससे मसाइल सामने आए हैं। आइंदा वफाकी की बजट में सनती पॉलिसी लाई जा रही है, जिससे मईशत वसात को फ़रोग़ मिलेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। समीडा के ज़ेर तमाम FPCCI में बजट इजलास बराए 2024-25 का इनेकाद। वफाकी वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर तकरीब के मेहमान खसूसी थे। राना तनवीर ने कहा कि बरामदात के लिए सरप्लस प्रोडक्शन और पैदावारी लागत का अहम रोल है। लागत कम होगी तो हम एक्सपोर्ट बेहतर अंदाज से कर सकेंगे। वीट का इशू है, बड़ा सीरियस इशू है। देखना है, रैशनल देखना है, कितनी सरप्लस है, कितनी नहीं है, क्या इम्पैक्ट उसका आता है जो कंज्यूमर के लिए, जो एंड कंज्यूमर है, ये भी पाकिस्तान के लिए तो वो देख रहे हैं कि किस तरह सिर्फ यही नहीं है कि फॉरेन एक्सचेंज लेना है, हम या इंडस्ट्री को भी कोई फ़ायदा पहुँचाना है, तो सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे भी लगे हुए हैं, काफ़ी उस पर हम काम कर रहे हैं। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि गंदम का मसला बहुत संजीदा मसला है। गंदम की दरामद हो चुकी है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीर को इस मसले पर अहम इजलास बुलाया है। इजलास में सनतकारों ने सस्ती बिजली और गैस की फराहमी का मुतालबा करते हुए कहा कि मुल्क की बेहतरी का सिर्फ एक ही हल है, सनतों को फरोग दिया जाए। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ और टैक्स कलेक्शन बड़ा चैलेंज बन गया। महसूलात का हदफ करप्शन, फ्रॉड और लालच की नज़र हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR के काबिल और मेहनती अफसरान के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा कि कर्जों की वजह से IMF के पास जाना पड़ता है। सबको मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए किरदार अदा करना होगा। ख़राब कारकर्दगी वालों को आला ओहदों पर रहने का कोई हक नहीं। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को सराहा जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के काबिल और मेहनती अफसरान के एजाज में मॉडल टाउन लाहौर में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान को आज मुश्किल चैलेंजों और मुश्किल हालात का सामना है। FBR अफसरान ने दिन रात मेहनत की। वाजिबात की वसूलियों का हदफ इंतहाई कम है। कर्जों की वजह से IMF के पास जाना पड़ता है। महसूलात बढ़ाकर अपने रेवेन्यू में इजाफा करने की जरूरत है। जो हमारी जो सालाना जो हदफ है वसूलियों का, वाजिबात का, उससे कम से कम 3 या 4 गुना ज़्यादा जो महसूलात जो ख़जाने में आने चाहिए वो बदकिस्मती से करप्शन, फ्रॉड, लालच और हिरस के नज़र हो रहे हैं। और यही वजह है कि हम कर्ज़े लेने पर मजबूर हैं। यही वजह है कि हम IMF के प्रोग्राम करने पर मजबूर हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि रिपोर्ट्स और FBR इनपुट के मुताबिक सियाह और सफेद को अलग करेंगे। जजा और सजा के अमल से ही कौमें अजीम बनती हैं। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को सराहा जाएगा। पूरी कौम को FBR के मेहनती और काबिल अफसरान पर फख्र है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए इंतहाई ईमानदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम दिए और विदाउट फेयर और फेवर आपने अपने फ़र्ज़ की अदायगी की। आप पर मुझे नहीं बल्कि पूरी कौम को आपके ऊपर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म का कहना था पाकिस्तान को दुनिया में खोया हुआ मकाम दोबारा दिलवाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान को अवार्ड पेश किए। मोहम्मद यासिन, लाहौर न्यूज़। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब पाकिस्तान सऊदी अरब की इमदाद से नहीं बाहमी सरमायाकारी से आगे बढ़ेगा। वज़ीर आज़म की जानिब से सऊदी अरब के लिए मुझे फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। सऊदी अरब से तमाम तर मामलात अब मैं देखूंगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अब पाकिस्तान सऊदी अरब की इमदाद से नहीं बाहमी सरमायाकारी से आगे बढ़ेगा। वजीर आज़म की जानिब से सऊदी अरब के लिए मुझे फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। तमाम तर मामलात अब मैं देखूंगा। हमारा मकसद है जब हमारे बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलें तो ना उम्मीद ना हो। हमारे बच्चे बच्चियों के लिए सबसे अहम चीज़ इस वक्त क्या है, वो ये है कि जब वो कॉलेज से निकलें, स्कूल से निकलें, यूनिवर्सिटियों से निकलें तो ना उम्मीद ना हो। आने वाले वक्त में जब वो बाहर निकलेंगे तो नौकरियां भी होंगी, और ना सिर्फ वो नौकरियों की तलाश करेंगे
बल्कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया और कामयाबी फराहम की तो वो लोगों को नौकरियां ऑफर कर रहे होंगे। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हमारा तीसरा मिशन ये है कि हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं। सऊदी अरब से सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे हैं, हमारे और उनके लोग मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगे। वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने मजीद कहा, आने वाले दिनों में पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन और जमात इस्लामी के दरमियान आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए मिलकर जदोजहद करने पर इत्फाक़ राय हो गया। महमूद खान अचकज़ई कहते हैं आइन की बालादस्ती के लिए इत्तेहाद कायम कर रहे हैं। जमात इस्लामी के अमीन ने अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक में शिरकत को मजलिस शुरा की मंजूरी से मशरूत कर दिया। महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के वफ़द की जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा आमद। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि आइन की बालादस्ती के लिए इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर बोले कि मुल्क में इस वक्त जंगल का कानून है, मैंडेट किसी को मिला, हुकूमत में कोई और है। हमने एक ऐसा ऐलान बनाने की कोशिश शुरू की जिस पे सब लोग मुतफ़िक़ हों, सब उस पे यकीन रखते हों। तो दोस्तों ने बैठ के ये वो निकाला कि आइन पाकिस्तान की एक ऐसी दस्तावेज़ है जिस पे हर जमहूरी पार्टी के लोग यकीन रखते हैं और चाहते भी हैं कि इस मुल्क में आइन की पामाली ना हो, इस मुल्क पे आइन की बालादस्ती हो। न मुल्क में कोई कानून है, न मुल्क में कोई आइन है और मुल्क बिल्कुल बनाना रिपब्लिक बन गया है। एक जंगल का कानून है। एक आज़ाद मुल्क जो है ना इस तरह नहीं चलाया जा सकता। जब मुल्क में इंसानी हुकूक बुरी तरह पामाल हो रहे हों, नाजायज़ मुकदमे बन रहे हों और किसी को इज़हार राय आज़ादी का वो न हो, इज़हार का मौका न दिया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि आइन और जमहूरियत की बालादस्ती पर हमारा उसूली इत्तेफाक है। जमात इस्लामी ऑपोजिशन के सेमिनार में शरीक होगी। जो उसूली तौर पर गुफ्तगू हमारी हुई है उससे तो पाकिस्तान के हर ज़ी शऊर और आइन पर और क़ानून पर और पाकिस्तान पर यकीन रखने वाले लोगों को ज़ाहिर उससे इख्तलाफ हो ही नहीं सकता। उस पर मुकम्मल इत्तेफाक है कि पाकिस्तान में आइन की और जमहूरियत की बालादस्ती होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने मजीद कहा कि ग्रेटर डायलॉग की बुनियाद 8 फरवरी इंतखाबात की अदालती तहकीकात होनी चाहिए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब के सदर राना तनवीर अहमद कहते हैं पार्टी की हर तहसील सतह पर तंजीम नो का आगाज़ कर दिया गया है। बल्दियाती इंतखाबात में हर यूसी उम्मीदवार सामने लाएंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात में बहुत कुछ सीखा। रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ परवेज़। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब के सदर राना नज़ीर अहमद का कहना था IPP 2 माह में तहसील सतह पर तंजीम मुकम्मल करेगी। बल्दियात सतह पर हर यूसी से उम्मीदवार सामने लाएंगे। मुल्क में इस वक्त महाजराई की सियासत है। 8 फरवरी के इंतखाबात में बहुत कुछ सीखा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तंजीम को हमने मुकम्मल करना है। ज़िलों की सतह पे, तहसीलों की सतह पे, टाउन की सतह पे और यूनिट कौंसिल और विलेज की सतह पे हम इंशाल्लाह ये काम 2 महीने के अंदर अंदर इसको मुकम्मल करेंगे। रुकने पंजाब असम्बली और जनरल सेक्रेटरी IPP शुएब सदीकी ने कहा किसानों और मजदूरों की ऐवान में भरपूर आवाज़ उठाएंगे।